نکاح کے لیے جتنے بھی عزیز و اقارب کو دعوت دی گئی تھی سارے جمع ہو چکے تھے۔ نکاح خواہ کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ لڑکے اور لڑکی والے دونوں اپنے اپنے مہمانوں کی خاطر مدارات میں مگن دکھائی دے رہے تھے۔ احمد، جس کا کچھ ہی دیر پہلے نکاح ہونے والا تھا، وہ دوستوں کے گھیرے میں تھا اور شرارتی دوستوں سے جتنا ممکن ہو پا رہا تھا وہ سب اسے تنگ کرنے میں مگن تھے۔ ایک دوست نے شرارتاً طنز کیا، احمد کو سب آخری بار غور سے دیکھ لو، یہ آج کے بعد نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے دوست نے فوراً سے جواب دیا، کیوں؟ کسی سے ادھار لے کر غائب ہونے لگا ہے کیا؟ یہ کہنا تھا کہ سب دوستوں کے بیچ ایک کہکا گونجا۔ تیسرے دوست نے مزید وضاحت کی، نہیں یار، ادھار لے کے غائب ہونے والے پھر بھی مل جاتے ہیں، مگر بیوی کی غلامی میں آنے والے دوست پھر کبھی نہیں ملتے۔ اور پھر سے کہکا گونجا تھا، یعنی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ احمد بیوی کا غلام بننے والا ہے؟ چوتھے دوست نے جان بوجھ کر سوال پوچھ لیا۔ دوسرے دوست نے موقع کا فائدہ اٹھاتے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور طنز کیا، کیا مطلب لگتا ہے یہ بنا بنایا غلام ہے؟ کہکوں کے بیچ دوستانہ طنز کے تیر چاروں اطراف پر احمد پر برسائے جا رہے تھے، مگر وہ نتلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے خاموش بیٹھا تھا۔ نکاح کی ذرا برابر اسے خوشی نہیں آئی تھی اس کے چہرے پر، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، اور کافی حد تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ دوستوں کے بیچ پھنسا ہوا دولہا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس ماحول سے باہر نکل کر کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ ہر گزرتا لمحہ اور دوستوں کی نوک جھوک اس کے دل پر بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ احمد کے ایک دوست نے سامنے سے آتے ہوئے ایک خوبرو نوجوان کو آتے دیکھ خاطب کیا، واہ بھئی واہ، آج تو لگتا ہے کہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ زرون صاحب نے بلاخر ہمیں ملاقات کا شرف بخش دیا۔ زرون مسکراتا ہوا آیا، سب سے مصافحہ کیا اور اپنے بڑے بھائی احمد سے مخاطب ہوا، بھائی آپ کو بلا رہے ہیں اندر۔ یہ بات احمد کے لیے تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھی، وہ تو خود بھی راہ فرار ڈھونڈ رہا تھا۔ احمد فوراً اٹھ کر چلا گیا۔ زرون احمد کے دوستوں سے باتوں میں لگ چکا تھا۔ زرون، تم تو کافی عرصے بعد آئے ہو انگلینڈ سے، پاکستان آنے کا کیا دل نہیں کر رہا؟ ایک دوست نے پوچھا۔ زرون نے مسکرا کر جواب دیا، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں پچھلے سال بھی آنا چاہ رہا تھا، مگر پھر سوچا کہ اگلے سال بھی شادی ہے تو ایک ساتھ ساری چھٹیاں لے کر پاکستان چلا جاؤں گا۔ تو محسوس بھائی کی شادی کے لیے ہے؟ دوسرے دوست نے کہا۔ یوں کچھ دیر تک باتیں چلتی رہی، اور تب جب احمد واپس آیا تو اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے زرون کے کان میں کچھ کہا اور دونوں بھائی وہاں سے نکل آئے۔ زرون کو ایک طرف لے جا کر احمد نے التجائی لہجے میں کہا، میرے بھائی میرا ایک کام کر لو گے نا؟ زرون نے احمد کو یقین دہانی کرائی کہ اس سے جو بھی ممکن ہو سکے گا وہ ضرور کرے گا۔ احمد نے اپنے اعصاب جمع کیے اور زرون کو جو بات بتائی وہ زرون کے لیے بہت ہی ناقابل یقین تھی۔ احمد کا مطالبہ کہ زرون اس کی جگہ کچھ دیر بطور دلہا وہاں بیٹھا رہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا؟ زرون کچھ دیر اس مطالبے کو ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر پھر بڑے بھائی کی اصرار پر مان گیا۔ احمد نے اسے کچھ دیر میں واپس لوٹنے کا کہہ کر اعتماد میں لیا اور وہاں سے چل دیا۔ نکاح سے کچھ دیر قبل تک وہ وہیں صوفے پر بیٹھا رہا، دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ قریباً گھنٹہ گزر گیا، نکاح خواہ بھی پہنچ چکا تھا، دیگر عزیز و اقارب بھی موجود تھے، مگر ابھی تک اگر کوئی موجود نہیں تھا تو احمد تھا جس کا نکاح ہونا تھا۔ زرون سمیت احمد کے دوستوں اور گھر والوں نے اسے بہت بار فون کیے، مگر نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ دلہن نے نکاح میں تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس کے گھر والوں نے اس سے بات چھپائے رکھی اور احمد کی قریبی رشتہ داروں کے آنے کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ زرون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ کہاں تلاش کرے احمد کو، کیونکہ اس کے سارے جاننے والے دوست یہی موجود تھے۔ انہیں سوچوں میں کچھ دیر گزری کہ زرون کے موبائل کی گھنٹی بجی تو دیکھا کوئی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زرون نے موبائل جیسے ہی کان سے لگا کر کچھ بولنا چاہا، آگے سے احمد کی آواز سنائی دی، زرون میں ہوں احمد، میری بات سنو، کیا تمہارے ارد گرد کوئی ہے؟ زرون نے ہاں میں جواب دیا۔ احمد نے اسے ایک طرف ہونے کو کہا جہاں سے کوئی ان کی بات نہ سن سکے۔ جی بھائی میں آ چکا ہوں۔
क्या है बताएं। और आप हैं कहाँ? सब इंतजार में है, निकाह ख्वाह भी आ चुका है। ज़ारून ने फिक्रमंदी से एक साथ कई कई सवालात पूछ डाले। ज़ारून, मेरी बात गौर से सुनो, मैं नहीं आ सकता। मैं पहले से ही शादी कर चुका हूँ, मगर मैं घर वालों के सामने ये सब नहीं कह पा रहा था। तुम मिराह से निकाह कर लेना, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। अहमद ने उसकी बात क्या कुछ कहा। ज़ारून ने कुछ ना सुना ना ही समझ सका, क्योंकि उस पर सख्ता तारी हो चुका था। वो दीवार के सहारे नीचे ज़मीन पर बैठ गया। हर गुजरते लम्हे के साथ हजारों ख्यालात दिमाग के पर्दे से टकरा कर लौट जाते और ज़ारून के लिए ढेर सारे सवालात खड़े कर देते कि अहमद की इस हरकत का अजाला अब न जाने कितने लोगों को करना पड़ेगा। ज़ारून ने सबसे पहले अपने वालिदैन को बताई और उनको एतमाद मिल गया ताकि के जल्दी से कोई मुतबादिल लाहिला अमल तय किया जा सके। ज़ारून के वालिदैन ने जैसे तैसे बात कबूल करी। मैं लड़की वाले को ये बात किस तरह बताई जाए, ये सवालिया निशान बना रहा। ज़ारून ने अपने वालिदैन से कहा कि हिम्मत करके मिराह के वालिद से बात करें, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मिराह के वालिद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हस्पताल ले जाया गया। मिराह दुल्हन के लिबास में मलबूस रोते हुए हस्पताल पहुंची और जितनी देर वहाँ रही वो मुसलसल रोती रही। डॉक्टर कुछ देर बाद मरीज को घर ले जाने का कहकर और उसे टेंशन न देने का भी तजवीज़ दी। ज़ारून के वालिद ने मिराह के वालिद से कहा कि अगर आपको इतराज़ ना हो तो मिराह का निकाह ज़रून से कर देते हैं। अपने घर वालों की मजबूरी और मिराह के वालिद की तबीयत नासाज़गी, ऊपर से मिराह के दुख के एहसास, इन सब मजबूरियों ने ज़रून को हामी भरने के लिए आमादा कर लिया। मिराह के वालिद जब मिराह से पूरे वाक़े का जिक्र किया, उसने ज़रून से निकाह करने से ही साफ इनकार कर दिया कि जब लोग एक बार धोखा दे चुके हैं तो ये दूसरी बार भी धोखा देने से पास नहीं आएंगे। ज़रून ये सब सुन रहा था और उसे बहुत ही दुख हुआ कि 3 साल बाद इंग्लैंड से इन सब मसले मसाइल के तो नहीं आया था ना। वो तो खुशियों में शिरकत करने के लिए आया था, मगर यहाँ तो मंजर ही अक्सर बदल गया था। वो दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ खड़ा उनकी बातें सुनता रहा कि किस तरह एक मजबूर बाप अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज़माने के लिए लम्हा एक तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जिसमें हर एक अपनी मर्जी से किरदार कुशी करते हुए दिखाई देगा। क्योंकि निकाह से कुछ देर पहले दूल्हा दुल्हन को छोड़कर चला गया और ये इल्ज़ामात और ताने ज़िंदगी भर तुम्हारे और हम सब की ज़िंदगियों से जुड़े रहेंगे। काफ़ी बहस व तकरार के बाद मिराह ने हामी भर ली थी, मगर ज़रून के लिए मंजर इतना अचानक तब्दील हो गया कि वो समझने से कासिर था कि वो किस तरह अपने जज्बात का इजहार करे और किससे जाकर इजहार करे। मिराह के वालिद बाहर आए और ज़रून से इल्तिजा की कि उसकी बेटी को इस निकाह पर कोई एतराज़ नहीं है, हो सके तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। ज़रून ने उन्हें तसल्ली दी कि उसकी बेटी का हर मुमकिन ख्याल रखेगा। तसल्ली झूठी थी, क्योंकि ज़रून सब जुड़ चुका था और उसे पता चल चुका था कि मिराह की ज़बरदस्ती राज़ी किया गया है और ज़रून में वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है। मगर तसल्ली तो उसके बाप को देनी ही थी, चाहे झूठी ही सही। मगर ज़रून से बिल्कुल भी झूठी तसल्ली ये मकरो फरेब से नहीं दी थी, बल्कि वो बदलने वाले हालात और मिराह की उसके बारे में राय से दिल बर्दाश्ता हो गया था। निकाह के वक्त जब करीबी लोगों ने अहमद की बजाय ज़रून के साथ मिराह का निकाह होते देखा तो काफ़ी चामगोइयाँ हुई, मगर बात करीबी लोगों तक ही महदूद रही और यूँ ये बदनामी का खतरा वहाँ से काफ़ी हद तक टल गया था। निकाह से अगले दिन वलीमा हुआ और शाम को रुखसती भी हो गई। शादी बज़ाहिर तो शादी ही थी, मगर अंदर से शादी वाली कोई खुशी, कोई भी झलक नहीं थी उसमें। सुहाग रात को जब ज़रून कमरे में आया तो मिराह दुल्हन बने इंतज़ार कर रही थी। दोनों जानिब से सर्द लहरी बहुत ज़्यादा थी। ज़रून आकर पास बैठ गया और बजाय वो घूंघट उठा था उसे मुंह दिखाई देता, वो चेहरा दूसरी तरफ किए काफ़ी देर खामोश रहा। मिराह समझ गई थी कि ज़रून को भी ज़बरदस्ती इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लिया गया और ज़रून ने लंबी सांस अपने अंदर उतारते ऊपर छत की तरह देखा और फिर मिराह पर एक नज़र डाली जो अभी तक घूंघट उठाए जाने के इंतज़ार में थी। तो तुम्हें लगता है कि हम धोखेबाज हैं? ज़रून ने स्पार्ट लहजे में कहा। मिराह की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। वो फिर से मुखातब करने लगा, धोखेबाज हैं हम, है ना? मिराह इस बार भी खामोश रही और उसकी यही खामोशी ज़रून के गुस्से का बायस बन रही थी। वो उठकर इतना कहकर वॉशरूम जाने लगा।
कि अगर हम इतने ही बेतुबार हैं तो शादी करने की क्या जरूरत थी। दुल्हन जो मुसलसल इसलिए खामोश थी कि अभी उसका घूंघट भी नहीं उठाया गया, तो किसी भी किस्म की तलख के नामी मुनासिब नहीं थी। मगर अब मिरहा का गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका था। उसे घूंघट उठाकर नीचे पहन दिया और करख्तगी से जवाब दिया, हाँ नहीं करनी थी मुझे ये शादी। जबरदस्ती मेरे पाँव में ये बेड़ियां डाली गई हैं। धोखा हुआ है मेरे साथ, सुना तुमने? धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। जरून के कदम वहीं रुके थे। वो मिरहा के करीब आया और उसे कुछ देर तक देखता रहा। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ। मुझ पर गुस्सा करने की बजाय जाकर अपने घर वालों पर गुस्सा करो, जिन्होंने तुम्हें मेरे सर पर सवार कर दिया है। मिरहा गुस्से से लाल हुई जा रही थी। हाँ तो तुम भी मेरी मोहब्बत थोड़ी थे? मुझे शौक नहीं था तुमसे शादी का, मिरहा चिल्लाई थी। जरून ने होंठों पर हाथ रख इसे खामोश रहने का इशारा किया। चिल्लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत जल्द? अभी और इसी वक्त खत्म करो, अगर इतना ही मसला है तुम्हें। मिरहा की इस बात को नजरअंदाज करके वॉशरूम में कपड़े बदलने के लिए दाखिल हुआ। बाहर आया तो बेड से तकिया उठाकर सोफे पर लेट गया। मिरहा को जरून की इस हरकत पर ताज्जुब हुआ और वो उसके करीब आई। उससे बेजारी की वजह पूछी, मगर जरून ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। नहीं करनी बात तो मत करो, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। ये कहकर वो भी दुल्हन वाला लिबास तब्दील करने वॉशरूम में दाखिल हुई। रात भर कमरे में बेजारी मंडलाती रही। दोनों में से एक भी नहीं सो पाया था, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी की वो हसीन रात जिसमें इंसान शरीके हयात से प्यार और मोहब्बत वाली बातें करते हैं, खुशियां समेटते हैं, इस तरह से एक दूसरे से बेजार बैठे होंगे। रात दोनों के लिए काफी लंबी हो गई थी और इंतहाई बारीक। दूर से जब फजर की अजानें सुनाई देने लगी तो गहरी रात में छाई हुई खामोशी का जोर टूट गया और नया नवेला जोड़ा जो एक दूसरे से बेजार लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, अब एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने लगे थे। जरून ने उठकर वुजू किया और बाहर निकल आया। मिरहा को इतनी बेजारे की तवक्का नहीं थी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। बोझल कदमों के साथ उठकर नमाज की तैयारी करने लगी। जब जरून वापस आया तो रोशनी कुछ हद तक फैल चुकी थी। मिरहा जाए नमाज पर बैठी जरून को आता देख नजरअंदाज करने लगी। सुबह नाश्ता करते वक्त घर वालों ने दोनों के बीच की कशीदगी को महसूस किया। जरून के वालिदैन और बहन ने नई नवेली दुल्हन की खूब आओ भगत की, मगर रात की तलखी अभी भी हलक में थी, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर खून में शामिल होने लगी। और ये तासुर दूसरा दोनों तरफ बराबर था। शादी का घर हो तो गुमान होता है कि घर में हर तरफ खुशियां होंगी, मगर यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ थी। शादी की खुशियों की जगह उलझन, परेशानी और तनाव लेकर आई थी। कई दिन गुजर गए, मगर मिरहा और जरूर के बीच फासले कम होने के बजाय बढ़ते चले गए। जरूर रोज रात को दोस्तों के साथ घर से बाहर रहता, और जब घर पर होता तब भी मिरहा और उसके बीच कोई बात नहीं होती थी। जरूर देर से आकर कमरे में मौजूद बीवी को यूं नजरअंदाज करने लगता जैसे वो कमरे में मौजूद ही ना हो। मिरहा भी जिद की पक्की थी, वो भी हर मामूली बात को नोट करने लगती और ईंट का जवाब पत्थर से देने का इरादा रखती। जरा सी किसी बात पर तलख कलामी हो जाती तो मिरहा की आवाज कमरे की दरों दीवार से बाहर साफ सुनाई देने लगती। घर वाले भी अब खामोशी इख्तियार करते, क्योंकि अहमद की हरकत के बाद वो लोग कुछ भी कहने का इखलाकी जवाब खो बैठे थे। लिहाजा मिरहा की तरफ से कोई बात हद से तजावुज भी कर जाती तो लोग दरगुजर करते। शादी को करीबन हफ्ता हो चुका था। रात को मिरहा अपने मेके से फोन आया कि परसों हमने दावत रखी है तो ससुराल के सभी लोगों को दावत दे रहे हैं। मिरहा ने कहा कि मुझे लगा ससुराल को दावत पर बुलाने वाली रस्म भी नहीं करने वाले थे आप लोग। मुझसे तो जाम छुड़ाने का जैसे बहाना चाहिए था आप सबको। मिरहा बहुत तलख हो गई थी। बजाय खुश होने के वो अपने मेके से बात बात पर उलझने लगी थी। जरून मामूल के मुताबिक रात की इस पहर भी दोस्तों के साथ था। वो इंतजार करने लगी कि जब जरून आएगा तो उसे बता देगी कि परसों वो जरून की ससुराल ने दावत रखी है। इंतजार आज कुछ ज्यादा लंबा हो गया था और जरून ने आज जब घर में कदम रखा तो रात का 1:30 बज रहा था। पहले भी वो देर से ही आया करता था, मगर 12 बजे तक वो आ जाया करता। मिरहा सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। जब जरून अंदर आया तो सामने मिरहा को सोफे पर सोया हुआ थे। उसे मिरहा पर सख्त गुस्सा आया। उसे हाथ से पकड़कर जोर से हिलाया, उठ जाओ यहाँ से, जाओ अपनी जगह पर सो जाओ जाकर।
ये पहली बार ज़रून ने मिरहा को छुआ था। मिरहा की जोर की झटके सी आंख खुल गई थी। ओ आई एम सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। वो उठ तो गई थी और ज़रून तकिया लेकर सोफे पर लेट गया। ये ड्रामों वाली हरकत मेरे साथ मत किया करो, समझी तुम? ज़रून ने गुस्से में कहा। मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, तो आंख लग गई। मिरहा ने मासूमियत से कहा। हाँ तो किसने कहा था इंतज़ार करने को? मत किया करो मेरा इंतज़ार। ज़रून के लहजे में अभी भी जैसे बेजारी ही बेजारी थी। तुम्हारे ससुराल वालों ने दावत रखी है परसों, तो परसों वहाँ जाना है, बस यही बताना था। ये कहकर वो जाने लगी तो ज़रून के जवाब में उसके कदम रोकिए। हाँ चली जाना, और जिधर मर्जी जाना चाहिए जा सकती हो, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिराह को लगा जिसे वो बिल्कुल ही लापरवाह हो चुका है उसके लिए। बीवी होने के बावजूद भी उसके गैर मानूस लहजे में क्यों कर बोलता था उसके साथ। मुझे नहीं, हम सबको दावत दी है, खासकर तुम्हें, क्योंकि ये रस्म दूल्हे के लिए होती है। मिराह ने वजाहत की, मगर ज़रून ने यह कहकर फौरन से इनकार कर दिया कि जब हम दोनों इस शादी को ही नहीं मानते तो क्या फ़ायदा इन रस्मों का, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता। तुम बाकी घर वालों के साथ तुम चली जाओ, जाना चाहो तो चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकता इस बारे में। मिराह के लिए सब बर्दाश्त से भी बाहर था। वो भी थोड़ी देर में आपस से बाहर हो गई थी। ठीक है, नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन अब ये रोज की चिक चिक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब हम दावत पर नहीं, सीधा कोर्ट जाएंगे, और ये जो किस्सा है ना, ये किस्सा ही खत्म कर देंगे। ज़रून उठकर सीधा सीधा बैठ गया। कोर्ट भी साथ नहीं जा रहा मैं, और रही बात रिश्ता ख़त्म करने की, तो ये शौक भी तुम्हारा बहुत जल्द पूरा कर दूंगा, लेकिन अभी सही वक्त आने दो। फिर रात को देर तक दोनों के बीच बहसो तकरार होती रही, मगर कोई मुस्बत हल नहीं निकल सका, क्योंकि दोनों अपनी अपनी अना, जिद और अकल में रोज बरोज एक दूसरे से सबकत लेने में लगे हुए थे। सुबह मिराह ने घर वालों को भी आगाह कर दिया और सबने खुशी खुशी दावत कबूल की, मगर असल मसला अब भी वही का वही था। उसने दोपहर को फिर ज़रून से बात की कि वो अपनी जिद और अकड़ को एक दिन के लिए मौखर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बात पर ज़रून के कान पर जू तक नहीं देंगी। दोपहर का खाना खाकर जब वो मिराह की सारी बातें सुनी अनसुनी करते बाहर निकलने वाला था, तब मिराह ने उसे गुस्से में कुछ कह दिया कि जिससे घर वालों को लगा कि शायद नौबत तलाक तक आ जाएगी, मगर ज़रून ने बाहर जाने को ही तरजीह दी। शाम तक घर में सुनाटा और उदासी रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि शादियाँ तो खुशियाँ लेकर आती है, मगर यहाँ सब कुछ ही उल्टा क्यों हो रहा है। निकाह के दिन से अब तक एक सुकून का लम्हा नहीं गुजरा था इस घर में। अहमद की गलती की सज़ा दो खानदान भुगत रहे थे, और अहमद की गलती के बाद मिराह और ज़रून की अनाएं, जिद और अकड़ भी थी, जिससे रोज़ घर मैदान जंग का मंजर पेश बनता। रात को ज़रून खाने के लिए भी नहीं आया, और ना ही मिराह अपने कमरे से निकली। ज़रून की बहन ने मिराह का खाना कमरे में ही भेज दिया। कल रात को दावत होनी थी और यहाँ दुल्हा जाने से ही इनकारी था। मिराह सोच सोच कर पागल हो रही थी कि वो ज़रून के बिना जाएगी तो क्या जवाब देगी लोगों को कि दुल्हा क्यों नहीं आया। आज रात फिर से ज़रून से बात करने का उसने इरादा किया, मगर दोपहर को जो हुआ उसके बाद ज़रून घर आएगा भी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता था। मिराह इंतज़ार करने लगी, बेमकसद इंतज़ार। इसके नतीजे का उसे बाखूबी अंदाज़ा था, मगर इस बेमकसद इंतज़ार के सिवा कोई रास्ता नहीं था। दीवार पर लगे घड़ियों ने 12 बजते ही घंटी बजा दी थी। कमरे में टहलते वो बार बार घड़ियों को देखती रही। ज़रून के आने का कोई नामो निशान नहीं था। उसने फ़ोन करने का सोचा, जब मोबाइल उठाया तो उसे याद आया कि दोनों ने कभी नंबर एक्सचेंज ही नहीं किए। ज़रून घर देर से आया और कमरे में दाखिल होती मामूल की तरह तकिया लिया और सोफे पर लेट गया। मिराह उसके पास है, कुछ देर खामोश खड़ी रही, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कहाँ से बात शुरू करे। कल अगर हमारे साथ आप चले तो? मिराह ने तोड़ तोड़ कर जवाब जुमला बनाया, और ज़रून के घूरने के अंदाज से नामुकम्मल ही रह गया। मसला क्या है तुम्हारा? गड़ाते ही कोई ना कोई बहस शुरू कर देती हो, आखिर चाहती क्या हो? तो ज़रून उसी पर चिल्लाया, और मिराह डर के मारे 2-3 कदम पीछे चल गई। वो सहम गई थी कि ज़रून पहली बार इतना तेज बोला था।
وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی اور اگلے کچھ لمحوں تک اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل سکا۔ اب جاؤ اور سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، زارون نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ مرحا کھڑی رہی اور ہمت کر کے پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ تمہارے بغیر ہمارا جانا بالکل بے معنی ہے، مرحا نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ زارون نے پھر سے انکار کر دیا، مگر اب مرحا نے تیسری بار کوشش کی۔ زارون پلیز، بس 1-2 گھنٹے کی بات ہے، پھر تم کوئی بہانہ کرتے واپس آ جانا پلیز، ورنہ وہ سب مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے، التجائی لہجہ میں کہتے۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو کناروں پر تیرتے نظر آنے لگے۔ زارون غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے بیڈ پر گراتے اس پر چلایا، چپ چپ کر جا پاگل عورت، ایک بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ زندگی عذاب بنا دیا تم نے میری۔ اور وہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور مرحا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ پوری رات وہ اسی دکھ کے ساتھ سونے کی کوشش کرتی رہی کہ کل کو دعوت میں لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی، اور کب اس کی آنکھ لگ گئی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن صبح سے شام تک مرحا سوچتی رہی کہ وہاں اس کے سامنے کیا بہانہ بجا جائے۔ شام کو تیار ہونے لگی تو زارون بلیک کوٹ سوٹ پہنے پہ اس کے سامنے کمرے سے نکل گیا۔ مرحا کو بہت دکھ ہوا، مگر اسے اندازہ تھا کہ کوئی اب کچھ نہیں ہونے والا، جو بھی ہو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ وہ باہر آئی تو ساس سسر اور نند گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی آ کر پیچھے ساس اور نند کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مرحا نے خاموشی توڑی۔ ڈرائیور نہیں آ رہا کیا؟ ڈرائیور بس آنے ہی والا ہے، اس کی نند نے اس بات پر وہ تینوں ہی ہنس پڑے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مرحا نے جو دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زارون نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں ہوئی۔ مرحا کے چہرے پر خوشی کی ایک واضح لہر جھل گئی۔ وہ بارہا سائیڈ مرر میں اسے دیکھتی، ایک خوبصورت نوجوان جو کالے کوٹ پینٹ پہ مزید پر اثر لگ رہا تھا۔ اتنے دن لگے تھے مرحا کو زارون کو اتنے غور سے دیکھنے کے لیے۔ مرحا کے بارہا دیکھنے کی اس عمل کو زارون نے نوٹ کیا، بٹن دبا کر سائیڈ مرر کی پوزیشن کو ہلکا سا بدل دیا۔ مرحا سمجھ گئی کہ زارون نے اسے نوٹس کر لیا تو شرمندگی سے دوبارہ اس طرف نہیں دیکھا۔ وہ سب آپس میں پورے راستے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، سوائے مرحا کے جو خاموش بیٹھی ہوئی، مگر وہ خوش تھی کہ زارون ساتھ آ گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک مایوس کن خیال نے خوشی کی عمارت کو زمین بوس کر دیا کہ یہ ہمیں وہاں ڈراپ کر کے چلا تو نہیں جائے گا؟ ہاں، یہ ایسا ہی کرے گا، ورنہ یہ تو آنے کو راضی نہیں تھا۔ اس طرح سے کئی سارے خیالات ذہن میں یکے بات دیکھنے آنے لگے۔ مرحا کا گھر پہنچ چکا تھا، سارے گاڑی سے باہر اترے اور مرحا کے گھر والوں سے ملنے لگے۔ زارون بھی وہی تھا، سب سے خندہ پیشانی سے ملتا رہا۔ اب مرحا کے دل کو تسلی ہوئی کہ وہ نہیں جائے گا۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، مہمان میزبانی دیکھ کر خوش تھے اور میزبان مہمانوں کی خندہ پیشانی سب کے ساتھ گل مل جانے پر خوش تھی۔ اور مرحا بھی خوش تھی، اور کیوں خوش نہ ہوتی، شاید وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ اس کی کزن زارون کی تعریف کرتے اسے چھیڑ رہی تھی، کوئی کہتی کہ اتنے پیارے بندے کے ساتھ تو دن رات محبت بڑی باتیں ہوتی ہوں گی، تو کوئی یہ کہہ کر چھیڑنے لگتی کہ کون سا وظیفہ کرنے لگی تھی جو اتنا ہینڈسم بندہ ہاتھ لگا ہے۔ اور جب باری اس کی سب سے قریبی دوست کزن کی آئی تو اس نے تو حد ہی کر دی، یہ کہہ کر کہ تمہارے تو دن اور راتیں دونوں ہی مزے میں ہو گئے۔ مرحا نے مسکراتے ہوئے ہر بات کو نظر انداز کر دیا، مگر اندر سے دل پر بوجھ پڑنے لگا تھا۔ ان سب لوگوں کے لگائے کے اندازوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ کھانے کے بعد کھیر لائی گئی، اسے دلہا دلہن نے چمچ سے ایک دوسرے کو کھلانا شروع کیا۔ زارون نے یہاں بھی خندہ پیشانی سے پہل کی اور چمچ سے مرحا کو کھیر کھلائی۔ مرحا نے بھی اسی طرح کیا اور یہ میٹھی رسم سب لوگوں نے موبائل فونز میں تصویریں اور ویڈیوز کی صورت میں محفوظ کر دی۔ دونوں ایک ساتھ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے، ایسا لوگوں کا کہنا تھا، مگر حقیقت پہ دونوں کی بھی بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ دعوت سے واپسی پر مرحا بہت ہی حیرت میں مبتلا تھی کہ زارون اس قدر اچھی ایکٹنگ کر لیتا۔ کمرے میں آتے مرحا نے مذاق میں طنز کیا کہ ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو، ہالی ووڈ میں ہوتے تو آسکر ایوارڈ جیتتے۔ زارون نے بھی مذاق میں جوابی کارروائی کی امید جگائے۔ مرحا کو دکھ ہوا جب زارون نے اسے اپنی اوقات میں رہنے کا کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل نہ دے تو ہی اچھا ہوگا۔
दोनों के बीच फासले बरकरार थे, मगर मिराह के बाकी घर वालों के साथ कुर्बतें बढ़ने लगी थी। मुख्तसर अरसे में सास ससुर की वो लाडली बन गई थी और नन से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी जैसे वो दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हो। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे और शादी के तकरीबन 3 महीने बाद जब मिराह से उसकी नन ने मजाक में पूछा कि खुशखबरी कब सुना रही हो, तो मिराह को ताज्जुब हुआ कि किस खुशखबरी की बात हो रही है। फिर नन ने वजाहत की कि नई शादीशुदा जोड़े से भला और किस खुशखबरी की तवक्को की जा सकती है। तो इस बात पर मिराह के चेहरे पर एक नेम उदास सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्या जवाब होना चाहिए इस सवाल का, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिससे किसी किस्म की कोई खुशखबरी की तवक्को की जा सके। बेहतर है इस घर में कोई ऐसी उम्मीद न रखे। ये कहकर वो शिकस्ता दिल के साथ उठकर वहां से चली गई थी। उसकी नन को अंदाजा था, मगर आज उस अंदाज पर मिराह ने हकीकत की महर लगा दी थी। 3 महीने गुजर जाने के बाद भी दोनों के दरमियान मौजूद खुला पूर्ण न हो सका था। अहमद की गलती ने किस कदर मुश्किल में डाल दिया था सबको, शायद अहमद को भी अंदाजा ना था। रात को मिराह ने ज़रून से दिन में होने वाले वाक़ये के बारे में बताया कि उसकी बहन और शायद सास ससुर को भी किसी खुशखबरी की तवक्को है, जिस पर ज़रून तमस्खर उड़ाता कहने लगा, खुशखबरी? उन सबको वाकई खुशखबरी चाहिए। हाँ, खुशखबरी बनती है उनकी, और तुम्हारी भी। क्या मतलब? मिराह ने नासमझी से उससे पूछा था। मतलब साफ है, मैं अगले हफ्ते वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ। मैं 1 हफ्ता ज़ायद छुट्टी कर चुका हूँ और जाते हुए तुम्हें भी आज़ाद कर दूंगा इस कैद से। तुम भी खुश और मेरे घर वाले भी। तो कैसी लगी मेरी ये खुशखबरी? ज़रून की बात पर मिराह के दिलो दिमाग फटने को तैयार थे। वो बात किस आसमानी बिजली से कम ना थी। उलझन कम होने की बजाय मजीद बढ़ती जा रही थी। तलाक का ख्याल भी उसकी रूह को लड़सा देता। अब उसके वालिद तो ये सुनकर जीते जी मर जाते। मिराह सहम गई और अब वो मुकम्मल खामोश रहने लगी। घर में से किसी से भी ज़रून के इरादे के बारे में बात नहीं की थी, न अपने घर वालों में से किसी से जिक्र किया। दिल में एक तूफान की तबाही का अंदाज़ा लगाकर वो कांप उठी। उसकी नन, जिससे वो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, ये सब नोट कर रही थी, मगर दोनों से मिराह की खामोशी और उदासी की जब वजह पूछी तो उसके गले लगकर रोने लगी। नन वजह पूछती रही, मगर वो बिना कुछ कहे बहुत देर तक रोती रही। और जब दिल का गुबार थोड़ा सा कम हुआ तो ज़रून की जानिब से तलाक देने के बारे में बताया। नन ने उसे दिलासा दिया कि हमारे वालिदैन ऐसा नहीं होने देंगे, आप परेशान ना हो। नन की तसल्ली ने उसके दिल में लाख खतरात को बहुत हद तक कम कर दिया था, मगर खतरात अभी मौजूद थे, क्योंकि ज़रून जिस दिन मिराह ने जांचा था पिछले कुछ महीनों से वो कुछ भी कर गुजरने से बाज आने वाला नहीं था। बात ज़रून के वालिदैन तक पहुंच गई थी। उन्होंने ज़रून को तनकिया की कि अगर उसने किसी भी किस्म की कोई भी गलत हरकत की तो इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ज़रून ने आकर मिराह को मलामत करना शुरू कर दिया कि अपने घर वालों को नज़रों में मजलूम साबित करने के लिए उसकी बातें जाकर अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश करती है ताकि सबकी हमदर्दियाँ समेट सके। मिराह ने वजाहत दी कि ऐसा कुछ नहीं। उसकी बहन जिद करने लगी थी कि किस वजह से वो परेशान है। उसे बता दिया था कि तुम्हारा भाई मुझे जाने से पहले छोड़ना चाहता है। ज़रून ने मिराह की बात सुनकर फिर से तमस्खर उड़ाया। क्या सिर्फ मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो? जब तुम्हारा भी यही इरादा है तो सिर्फ मैं ही तो सबके निशाने पर हूँ। अपनी मर्जी भी बता देती इसे कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मगर नहीं, ड्रामे जो करती हो तो ड्रामे देख देख कर ड्रामा क्वीन बन गई हो। अवार्ड मुझे नहीं, तुम्हें मिलना चाहिए कि सास बहू के ड्रामे। फिर मिराह खामोश खड़ी सुनती रही और जब ज़रून कहते कहते खामोश हुआ तो मिराह ने नर्म लहजे में कहा, मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता ख़त्म हो। ये जैसा भी है चलता रहने दो। ज़रून को उस पर हंसी आई। तुम तो चीख चीख कर कहा करती थी कि मुझे आज़ाद कर दो इस कैद से, लेकिन अब क्या हुआ? अकल ठिकाने आ गई है क्या? वो फिर से हंसा मिराह पर। जो भी समझना है समझ लेना, लेकिन प्लीज़ ये रिश्ता ख़त्म मत करो। मेरे बाबा पहले ही दिल के मरीज़ हैं, वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। तुम्हें जाना है तो ज़रूर जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रिश्ते को बरकरार रखो। ये कहते हुए मिराह की आंखें झुकी हुई थी
ज़रून का तलक जवाब सुनकर वो मजीद किसी ब्लैक मीनिंग में नहीं आएगा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मिरहा खुद को इस तूफान की तबाही के लिए असाबी तौर पर तैयार करने लगी थी। कुछ दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। एक दिन किचन में काम करते वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। नंद भी साथ भी किचन में मौजूद थी। मिरहा को गिरते देख वो जल्दी से ज़रून के कमरे की जानिब दौड़ी, जहां ज़रून लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। जैसे उसे मिरहा की बेहोशी का इल्म हुआ, वो भी बहन के साथ किचन की जानिब भागा और मिरहा को गोद में उठाकर गाड़ी में डाल दिया। उनके वालिदैन घर पर नहीं थे, तो ज़रून ने बहन को साथ देकर मिरहा को जल्दी से अस्पताल पहुंचा दिया। मिरहा को मुआयने के लिए अंदर ले जाया गया। ज़रून के हाथ कांप रहे थे और उसकी बहन रो रो कर दुआएं मांग रही थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर साहिबा बाहर आए और उन्हें आगाह किया कि कोई परेशानी वाली बात नहीं, मरीज को बहुत ज़्यादा जहनी तनाव का सामना हो रहा है। ओदियात लिख कर दे दी गई और कोशिश करें इन्हें जहनी तनाव से दूर रखें और एक हफ्ते तक उसके आराम का भी ध्यान रखें। मिरहा को घर लाया गया। वापस आए तो वालिदैन परेशान हो गए थे। ज़रून की माँ ने मिरहा के सर का सदका भी उतारा और ज़रून के कांच खींचते हुए वार्निंग दी कि खबरदार कि मेरी बहू को टेंशन दी आज के बाद। ज़रून रात देर तक मिरहा की देखभाल करता रहा, मगर जब सोने लगा तो मिरहा को उस वक्त बहुत तेज बुखार ने आ घेरा। ज़रून पागलों की तरह आधी रात को कमरे में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर किचन से जाकर कपड़ा और फ्रिज से बर्तन में ठंडा पानी भरकर उसने कपड़े को भिगोकर मिरहा के माथे पर रखने लगा। कभी हाथों और पैरों पर रखता ताकि बुखार का जोर टूट जाए। वो बुखार में बस एक ही बात बार बार ज़ेर-लब दोहरा रही थी कि मैं किस तरह सबका सामना करूं। अगले 1.5-2 घंटे बाद यही करता रहा और जब वो बुखार का जोर टूट गया तो साथ बेड पर दूसरी तरफ तकिया रखकर लेट गया। मिरहा के पैरों पर ठंडे पानी में भगोई पट्टियां रखने लगा। कब ज़रून की आंख लगी उसे पता भी न चला। सुबह जब मिरहा की आंख खुली तो उसे अपने पैरों में ज़रून को सोता हुआ पाया। ज़रून की कल पूरे दिन की थकन और पूरी रात का जागना मिरहा के दिल में घर कर गया था। सोता हुआ वो बहुत प्यारा लग रहा था और कुछ कमाल मिरहा के उसने नज़र का भी था, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से ज़रून को देखने लगी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी कज़िन्स उसे क्यों कब छेड़ती रहती हैं। मिरहा ने जब अपने जिस्म पर निगाह डाली तो बदन पर कपड़े ना होने के बराबर थे। ट्राउज़र भी घुटनों से ऊपर तक फोल्ड किए गए थे। ज़रून का एक हाथ कपड़ा लिए अब मिरहा की पंटली पर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दिखल गई। गाल शर्म से पूरे लाल हो गए थे। वो इसी ख्याल में मगन थी कि ज़रून की आंख खुल गई। कैसी हो? ज़रून ने पहले उसके चेहरे को, फिर गर्दन को और फिर पैरों को छूकर बुखार का जायजा लिया था। मिरहा के चेहरे पर शर्म के मारे रंग बदलने लगे। ठीक हूँ, मिरहा ने शर्माते हुए जवाब दिया। हाँ, ये तुम्हारी शर्ट मैंने उतार दी थी और ये ट्राउज़र भी फोल्ड कर दिए थे। बुखार बहुत ज़्यादा था। मैं इस कपड़े की मदद से बुखार को कम करने की कोशिश करता रहा सारी रात। ज़रून ने कपड़ा, जो कि अब सूख चुका था, मिरहा को सबूत के तौर पर दिखाया। मिरहा शर्म के मारे सिर्फ इस्पात पे सर हिला सकी, मगर वो सब इसे बहुत अच्छा लगने लगा था। शरीके हयात के होने का एहसास वो पहली बार महसूस कर रही थी। ये एहसास अभी मुकम्मल नहीं था, मगर आधा अधूरा ही सही, फिर भी इतना खूबसूरत था कि वो दिल ही दिल में ये दुआ करने लगी कि ये पल कभी ख़त्म ना हो। मगर ये ख्वाहिश फ़कत ख्वाहिश ही रही। ज़रून उठकर वॉशरूम जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वापस मुड़ा। हाँ सुनो, वो मैंने कुछ नहीं किया सिवाय तुम्हारा बुखार कम करने के, तो अगर शक हो तो दूर कर लो। ये कहकर वो वॉशरूम में घुस गया। मेरा इस मासूमियत और नादानी पर सिवाय हंसते के और कर ही कह सकती थी। अगले हफ्ते, एक हफ्ते तक मिरहा के ससुराल ने मिरहा को ज़बरदस्ती आराम करवाया, बावजूद इसके कि मिरहा 4-5 दिन बाद ही मुकम्मल सेहतयाबी का कई बार ऐलान कर चुकी थी। मगर ससुरालियों की जिद के आगे मिरहा की एक न चली और मजबूरन हार तस्लीम कर ली। जिस दिन ज़रून ने जाने का फैसला किया था, उस दिन वो दोपहर तक सोता रहा। मिरहा को लगा था कि उसके इस घर में वो दिन आखिरी साबित होगा, मगर उसे हैरत और खुशी तब हुई जब शाम को ज़रून ने घर वालों को दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए शमाली इलाका जाने की खबर दी। सूरज ढलने से पहले पहले वो घर से रवाना हुआ। ज़रून की यह हरकत मिरहा की उदासी का सबब बन रही थी, तो साथ खुशी भी थी कि ज़रून कम अज़ कम इस रिश्ते को ख़त्म करने का इरादा तो मौखर कर चुका है। शाम को लॉन में अपनी नंद के साथ चहलकदमी करते हुए
میرا کئی سارے نئے اور حیرت انگیز اس پر انکشافات ہوئے تھے۔ تمہارے بھائی نے انگلینڈ جانے کا کیا ارادہ کیا؟ کوئی بدل دیا کیا؟ میرا نے اپنی نند سے پوچھا تھا۔ ہاں، ارادہ؟ کون سا ارادہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کو اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا، نند نے فوراً سے جواب دیا۔ مگر وہ تو بہت سختی سے کہہ چکا تھا کہ جس دن میں انگلینڈ واپس چلا جاؤں گا تو میں اس قید سے آزاد کر دوں گا۔ میرا نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں شاید، وقتی غصہ ہوتا ہے نا بھائی کا۔ اور اگر زرون بھائی کی کوئی خامی کی بات کی جائے تو یہ بہت بڑی خامی ہے ان کی، جس میں وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور یہ بچپن سے ہی ایسے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ بھائی بہت ہی ملنسار، مخلص اور بہت زیادہ پیار کرنے والے انسان ہے۔ ہاں شاید، مگر قسمت ہی خراب ہوگی کہ میں ایک اچھے انسان کے ساتھ ہو کر بھی تنہا ہوں۔ مرحا نے دکھ بڑی لہجے میں کہا۔ نن نے مرحا کے دکھ کو سمجھتے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح وہ سمجھ رہی ہے۔ وہ بھائی اور اپنے بیچ کی غلط فہمیوں کا جائزہ لے کہ کیا وجہ ہے دونوں کو قریب جو آنے ہی نہیں دے رہی۔ بھائی نے اگر چھوڑنا ہوتا تو وہ کب کا الگ ہو چکا ہوتا۔ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر پا رہا، ورنہ تو اکثر لڑائی میں تو لوگ اس نے بہت بار نجا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ زرون اور مرحا کے بیچ جو بھی تھا، مگر مرحا اب زرون سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر زرون کی طرف سے ابھی بھی وہی بیزاری تھی۔ 2 دن کا کہہ کر زرون دوستوں کے ساتھ گیا تھا، مگر آج 3 دن ہو چکے تھے۔ زرون کے واپس آنے کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ مرحا زرون کی کمی محسوس کرنے لگی تھی اور پچھلی 3 راتوں پر صوفے پر ہی سو رہی تھی، لیکن اس رات اس سے رہا نہیں گیا اور گھر والوں سے زرون کا نمبر لے کر اسے کال کر دی۔ زرون نے نئے نمبر سے آتی ہوئی کال کو موصول کیا تو آواز سنتے ہی وہ جھونک گیا۔ وہ مرحا تھی اور وہ بنا یقین سوچ سے سمجھے کال ملا چکی تھی۔ زرون نے جب حال پوچھنے کے بعد کال کرنے کی وجہ پوچھی تو مرحا کے پاس بتانے کو کوئی وجہ نہ تھی۔ اس کی یاد آ رہی تھی، یہی وجہ تھی، اور یہ مرحا بتا نہیں سکتی تھی۔ فون پر کوئی خاص بات نہ ہو سکی۔ مرحا کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ بات کرنے کا موقع بھی ملا اور وہ بھی اس نے ضائع کر دیا۔ خود کو ملامت کرتی مرحا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ واٹس ایپ پر اسے میسج موصول ہوا۔ واٹس ایپ کھول کر دیکھا تو ڈی پی پر اس خوبرو انسان کی تصویر تھے جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بات ہوئی تھی، اور باتیں ادھوری رہ جانے کی وجہ سے وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ تصویر میں وہ سن گلاسز لگائے کسی گیسٹ ہاؤس پہ کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وائس نوٹ جب سنا تو زرون نے اس پر مقررہ دنوں سے 2 دن زائد گزارنے کی وجہ بتائی کہ کیسے اچانک اس کے دوستوں نے آخری دن اسکوردو سے چترال جانے کا پلان بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے 2 دن زائد لگ گئے۔ مرحا نے اس کا نمبر محفوظ کیا اور اسے رپلائی کیا، انجوائے کرے ٹرپ کو۔ تھوڑی دیر بعد واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ مرحا نے جلدی سے دیکھا تو زرون کا میسج تھا، پیاری لگ رہی ہو۔ مرحا نے میسج کو دیکھا، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زرون نے اس کی تعریف کی۔ وہ زرون جو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ مرحا تو کچھ دیر تک سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کا کیا جواب دینا چاہیے۔ پھر تھوڑی ہمت کی اور میسج ٹائپ کیا، شکریہ، مگر تعریف کرنے والا زیادہ پیارا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا، اور ہر تھوڑی دیر بعد موبائل دیکھتی، مگر میسج سین ہونے کے باوجود کوئی رپلائی نہیں ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر رپلائی نہیں آیا، اور جب آیا تو مسکرانے والا ایموجی۔ مرحا کو لگا اس نے غلطی کر دی اپنے احساسات کو بیان کر کے، مگر اب کر بھی کیا سکتی تھی۔ آئندہ کے لیے وہ اپنے احساسات کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لے گی، یہ اب اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ اگلے روز زرون شام کو واپس لوٹا تو گھر میں کوئی سب سے زیادہ خوش تھا تو وہ مرحا تھی، لیکن اس نے ایک ایسا ظاہر نہیں ہونے دیا کسی کو، یہاں تک کہ زرون کو بھی نہیں۔ دونوں کے بیچ معمولی کی بات چیت کسی حد تک شروع ہو چکی تھی، جس میں زیادہ تر حصہ مرحا ہی ڈالتی، کیونکہ زرون ابھی کافی حد تک بیزار سا ہی دکھائی دیتا۔ مرحا کے مزاج میں زرون نے بہت بدلاؤ محسوس کیا تھا۔ وہ زیادہ اس کے قریب رہنے لگی تھی، ہر معاملے میں اس کی پسند ناپسند پوچھنے لگی تھی، اور سب سے بڑی بات جو زرون نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ مرحا ہر بات میں زرون کی خوشی ڈھونڈنے لگی تھی۔ زرون کے دل کی سختی بھی کم ہونے لگی تھی۔
लेकिन निकाह वाले दिन की बात जब भी उसे याद आ जाती, वो फिर से दिल बर्दाश्ता होकर मिराह के साथ सख्ती से पेश आने लगता। उस रात जब मिराह ने से बेड पर सोने का कहा तो मिराह को तंग करते कहने लगा, सोच लो, ऐसा ना हो फिर अपने फैसले पर तुम्हें पछताना पड़ जाए। मिराह ने मुस्कुराकर कुछ देर सोचने की एक्टिंग की। हाँ ठीक है, सोफे पर ही सो जाओ, चलो जाओ। चलो ठीक है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, ज़ारून ने कंधे उचकाते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मिराह ने जल्दी से वजाहत कर दी तो उसे घूर के देखने लगा। बेड पर लेटे दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर अचानक वही ख्याल कि मिराह ने उसे टकराया था, उसकी जात पर उंगली उठाई थी, ज़ारून के दिमाग के पर्दे पर रोनुमा हुआ और वो हंसी खुशी होने वाली गुफ्तगू एकदम से एक अनजान से एहसास में बदल गई। ज़ारून ने उठकर तकिया हाथ में लिया और सोफे पर लेट गया। मिराह को लगा शायद उसकी किसी बात से ज़ारून को बुरा लगा है। उसने ज़ारून से इस रवैये की वजह पूछने की कोशिश की, मगर ज़ारून ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कभी अच्छा बर्ताव तो कभी अजनबियों जैसा सलूक, ये ज़ारून का मिराह के साथ मामूल बन गया था। मिराह मुमकिन कोशिश करती कि वो ज़ारून के मिजाज के खिलाफ कोई भी बात ना करे, मगर वो हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी ज़्यादा देर तक ज़ारून के मिजाज में बेहतरी ना ला पाती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद दोपहर को ज़ारून लॉन में बैठा मोबाइल में मसरूफ था कि वो उसके पास आकर बैठ गई कि उसे इंग्लैंड से कॉल भी आई और कॉल पर उसे बताया गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो बिना इतला के मुकर्ररा वक्त से ज़ायद छुट्टियाँ कर चुका है और 2 बार उसके इंग्लैंड में मौजूद रहायिका पर नोट्स भी भेजा गया, मगर कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। कुछ देर के लिए ज़ारून के होशो हवास काम करना छोड़ के वो आसमान को मुतलाशी नजरों से देखने लगा। वो दुख और रंज की वजह से जब कमरे में आया तो मिराह ने उसके चेहरे की उदासी का अंदाजा लगाते वजह पूछी। ज़ारून कुछ देर जवाब देने से कासिर रहा और बुत बना साकित बैठा रहा, फिर रोने लगा। उसके पास अब कुछ नहीं रहा, एक नौकरी थी वो भी चली गई। मिराह ने ज़ारून की आंखों में आंसू देखते हुए उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे हौसला दिया, ये सब बेहतर हो जाएगा, मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हमें इसे सब्र तहम्मुल से काम लेकर उस मुश्किल वक्तों को गुजारना होगा। लेकिन ज़ारून की आंखों से आंसू लगातार जारी थे। मैं इस सबके लिए तो नहीं आया था यहाँ, मैं तो शादी की खुशियों में शरीक होने आया था, मगर यहाँ मेरे ही ना करदा गुनाह की सज़ा मुझे दी गई, मुझसे टकराया गया, मुझे धोखाबाज कहा गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी की इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत खाक में मिला दी। यहाँ खुशियों में शिरकत करने की उम्मीद लिए मैं 3 साल बाद आया, मगर यहाँ की रोज़ की बहसों तकरार, मैं इन सब को मैं लिए तो नहीं आया था ना। और अब नौकरी भी हाथ से चली गई। मेरा उसे दिलासा देती रही, मगर उसे अंदाज़ा हो गया था कि ज़ारून बुरा नहीं था, उसे हालात और उसके रवैये ने सख्त बना दिया था। ज़ारून को उन सब के बीच फिर से अपने ठुकराए जाने का ख्याल आया। उसे लगा कि मेरा हर मसले की जिम्मेदार है। मिराह को हाथ से पकड़कर वो कमरे से बाहर लिया और उस पर चीखता हुआ उसे घर से निकलने के देखा। बाकी घर वाले भी अपने कमरों से निकल आए और ज़ारून को रोकते रहे, मगर ज़ारून ने किसी की नहीं सुनी और चीखते हुए बार बार मिराह को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहा था। मिराह अब रोने लगी। इतने में अहमद भी अपनी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ और दाखिल होते जो मंजर देखा वो गम से नढाल खड़ा देखता रह गया। मिराह ने अहमद को देखते रोते हुए कहा, यही चाहते थे ना, देख ले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, खुश हो जाएं आप, आपकी गलती का अभी तक मैं अजाला करती आ रही हूँ। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मेरे घर वालों की रजामंदी के बाद उस शादी के लिए हामी भरी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी तबाही के लिए हामी भर रही हूँ। मेरा बोझल दिल के साथ वहाँ से निकल आई और टैक्सी में बैठकर अपने घर रवाना हुई। यहाँ अहमद का पहले बीवी को घर लाकर सबसे मिलवाने की खुशी अधूरी रह गई। अहमद ने बीवी को वापस ले जाना चाहा, मगर वालिदैन ने रोक दिया कि बहू पहली बार घर आई है, वो क्या सोचेगी। अहमद और उसकी बीवी का जिस तरह इस्तकबाल होना चाहिए था इस तरह तो नहीं हो सका, मगर अहमद की बीवी को ससुरालियों वालों ने मिलकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन तो घर पर आसूदगी के घने साए सुबह तक मंडलाते रहे। अगले दिन अहमद ने ज़ारून से मिलने की कोशिश की। ज़ारून ने बहाने से टाल दिया और दोस्तों के साथ कहीं ज़रूरी काम जाने का इरादा जाहिर किया। अगले कई रोज़ अहमद ज़ारून से बात करने की कोशिश करता रहा,
मगर वो बहाने से नज़रअंदाज करता रहा। मगर फिर अहमद ने एक दिन उससे बात कर डाली कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर मैं क्या करता। उससे निकाह करके अगर मैं बात उसे पता चलता कि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ तो ज़्यादा बड़ा धोखा ना होता, या निकाह ना करता, ये ज़्यादा बड़ा धोखा है। और जहाँ तक रही बात मिरहा की तुम्हें ठुकराए जाने की, तो उस वक़्त मिरहा की जगह कोई भी होता तो वही करता जो मिरहा ने किया था। यहाँ तक कि अगर तुम भी होते तो वही करते, वही कहते जो मिरहा ने किया है, कहा और किया। तुम दोनों एक दूसरे के जाविये से इस मामलात को नहीं देख रहे, सिर्फ अपने जाविये से देख रहे, और जिससे तुम दोनों के बीच बनने वाली गलतफहमियां परवान चढ़ती है। इतने दिन गुजर गए और वो मेके में बैठ गए। क्या सोचेंगे इसके मेके वाले कि मिरहा इतने दिन से क्यों वहाँ है। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की भी सुना करो, ये तुम्हारे गलत मशवरे कभी नहीं देगा। जाओ और जाकर मिरहा को ले आओ, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसकी एक बात को अनक का मसला बनाकर अपनी और उसकी जिंदगी को खराब मत करो। अहमद कमरे से निकल चुका था। जरून रात देर तक अहमद की बातों पर सोचता रहा और उसे एहसास होने लगा कि मिरहा के साथ उसने ज्यादती की थी। कल सुबह मिरहा को वापस लाने का इरादा करके वो लेट गया, मगर कुछ देर करवटें बदलते उसे ख्याल आया कि कल क्यों, आज भी इस वक्त क्यों नहीं। जरून उठकर कपड़े बदलकर बाहर आया और गाड़ी निकाल कर ससुराल रवाना हुआ। वहां पहुंचकर मिरहा के घर वालों को हैरान कि इतनी रात को अचानक मिरहा को लेने आ गया। ससुरालियों की तासरात से जरून को अंदाजा हो गया कि मिरहा ने उनके झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया था। जरून ने बहाना बनाया कि दोस्तों के साथ यहाँ करीब ही किसी काम से आया था, तो वापसी पर मिरहा को डिनर पर ले जाने का इरादा था, तो मुझे देर हो गई। मिरहा के वालिद ने जरून को कहा कि आज यही रुक जाओ, कल सुबह मिरहा को भी साथ लेकर चले जाना। मगर जरून फिर कभी आकर कयाम का वादा किया और मिरहा को साथ लेकर रवाना हुआ। रास्ते में कुछ देर दोनों के बीच कोई बात ना हुई। जरून ने खामोशी तोड़ दी। ऐसे तारीफ करने वाला अगर ज्यादा प्यारा हो तो क्या उसकी गलती को माफ किया जा सकता है क्या? मिरहा ने जरून को देखे बिना जवाब दिया। बहुत देर करती मेहरबान रिप्लाई करते करते जरून को जवाब फिर हंसी आई। मिरहा को अंदाजा हुआ कि वो घर नहीं जा रहे। हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि ये रास्ता तो घर नहीं जाता। मिरहा ने स्पार्ट से लहजे में कहा, तुम्हें अगवा कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे घर वालों से तवान वसूल करूंगा। जरून ने मजाक कर ठड़का लगाया। कौन से घर वालों से? ससुराल या फिर मेके से? मिरहा ने जवाबन पूछा। दोनों से। इस बात पर वो दोनों हंसे थे। मिरहा खुश थी कि वह जरून की अचानक से बदल जाने की आदत से ही वो खौफजदा थी। जरून ने एक तरफ गाड़ी रोक दी और मिरहा से दिल से माफी मांगी कि एक मामूली सी बात को अना का मसला बनाकर बैठा था। आज अगर अहमद भाई उसे ना समझाते तो शायद वो इस गलत रास्ते से कभी भी न लौट पाता। मिरहा ने कहा, इसका दिल बिल्कुल साफ है, बस वो अपनी गलतियों की माफ़ी चाहती है। वह घर जाकर अहमद से भी माफ़ी मांग लेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने जो कुछ भी कहा वो नहीं कहना चाहिए था। मिरहा ने फिर से पूछा कि हम किधर जा रहे हैं? तो जरून ने फिर से वही जवाब दिया कि तुम्हें अगवा करने का इरादा है। वह हंसी खुशी लोग ड्राइव मजा लेते रहे और एक दूसरे की नकलें उतारते रहे, खुशगपियां भी करते रहे। आइसक्रीम खाते हुए मिरहा ने एक अनोखा मशवरा दिया जिस पर जरून को हैरत हुई। मिरहा ने कहा कि क्यों ना हम फिर से निकाह कर लें, जिस पर जरून ने बताया कि हम तो पहले ही निकाह कर चुके हैं। लेकिन मिरहा की मुंतक ऐसी थी जिस पर जरून भी दांत देने से बाज आ सका। मिरहा ने कहा, निकाह हो चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ हम दोनों को कबूल करते वक्त एक दूसरे की आंखों में खुशी देख सके। दोनों के बीच तय पाया कि अपने चंद खास दोस्तों की गवाही में दोबारा से निकाह करेंगे। खुशियां समेटते हुए जब घर आए तो घर दाखिल होते ही चौकीदार ने जरून को एक खत दिया कि अहमद ने चौकीदार को जरून को देने को कहा था। जरून जब खत लेकर अंदर आया तो बाकी घर वाले उदास बैठे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। जरून ने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि अहमद अपनी बीवी को लेकर चला गया। जरून ने खत पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था कि मेरी गलती की वजह से तुम लोगों ने बहुत मुश्किलें देखी है। मैं मिरहा के साथ साथ तुम सबका मुजरिम हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैं हमेशा हमेशा के लिए आप सबकी ज़िंदगियों से निकल कर जा रहा हूँ। उम्मीद है मेरी आखिरी कोशिश आप सबकी मुश्किलें कम कर चुकी होंगी। आप सब हमेशा मेरी दुआओं में रह के मुझे से इंसान की यही सज़ा बनती है कि वो बाकी सारी उम्र अपनों प्यार के लिए तरसता रहे। दुआ है कि आप सबकी दिली ख्वाहिशें पूरी हो। मिरहा और जरून के मिलने के बावजूद भी एक कमी रह गई थी।
اور وہ احمد کی کمی تھی جس نے گھر کے ہر فرد کو دکھی کر دیا تھا۔